Good morning, children. So, beta, today we are going to start with a new topic, that is string handling. But, children, before starting with this topic, we should know that what do we mean by a string in Java. Okay, children. So, you know that we have number of data types in Java which are used to hold and to manipulate the different kind of values, and we also know that we have 8 primitive data types here. Okay, we can declare the variable of these data type and can store the values on these variables. Okay, children. And you also know that we have number of the data types which are used to handle the numeric data types or numeric values. Okay, and these are the byte, short, integer, long, float, double. Okay, so these are the 6 data type which are used to handle the numbers only. Okay, but what to do when we have to work with the alphabetical value? Okay, and you know that for that purpose we have only one data type, that is char. Okay, and children, you also know that this data type also have few limitations. For example, it can hold only one character. Okay, for example, a character type of variable can only hold the values from capital A to capital Z, you know. Okay, then it can also store the digits from 0 to 9. Okay, and we can also store the symbols in that. Okay, na? Any kind of symbols can be stored in this type of variable. So A to Z means all the alphabets can be stored, 0 to 9 these digits can be stored, or any kind of symbol. Okay, these symbols can be also stored in character data type, but a single character only. Okay, children, all these values are stored in form of the single character, and they should be always kept within the single quote only. Okay, for example, I show you few example for that. I can say char ch equal to small m. Okay, or I can say char ch equal to 5. Okay, children, now see that this 5 is within the single quote, and it is stored in a character type of variable, that is char ch. Okay, children, after that I can also store a symbol. For example, I can say char ch equal to like this. Okay, children, so these kind of values can be stored into a character variable, and they must be within the single quote. Always remember. But what to do if the value is having more than one character? For example, suppose you have to store your name. Okay, so we know that our names are having more than one alphabets in them. So in this type of situation, children, we cannot work with the character data member. Okay, so or sorry, the character variable. Okay, so for this purpose, children, we will make use of another data type, that is known as string. Okay, children, but before starting the topic, I want to make one thing very clear to you, children, that string is not a data type in Java. Okay, we only have 8 type of primitive data types in Java, and you know about them very well. Okay, but it is the ninth type which we are going to use in Java. Okay, but the thing I want to tell you that this is not a primitive data type. Then what it means? It is a non-primitive data type. Non-primitive, or you can also call it composite data type. Okay, children. So, children, actually, it is a library class of Java.
library class of Java, okay, and having number of member methods. Children, this library class has number of member methods with it. Okay, now means what do we mean by the method, children? These are the predefined functions which help you a lot while doing the programming with this data type. Okay, for example, as all of we know that we have already worked with the math class. Okay, we know that in the math class we have number of methods inside that. For example, math.max, math.min, math.sqrt, math.pow, है ना? तो ये सारे क्या क्या करते हैं, हमारा वर्क बहुत इजी कर देते हैं. इन द सेम वे चिल्ड्रन, ये जो डेटा टाइप है आपका, दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये हमारा वर्क क्या करता है, बहुत इजी कर देता है. बट जावा में इसको एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बल्कि इसको इन लोगों ने क्या किया है, एक लाइब्रेरी क्लास के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है. क्यों? क्योंकि देखिए, जब लाइब्रेरी क्लास के फॉर्म में इसको जावा में इंट्रोड्यूस किया तो इसके साथ हमें बहुत सारे लाइब्रेरी मेथड्स भी मिल गए. ओके ना? और मैंने जैसा आपको भी बताया कि दैट दीज लाइब्रेरी मेथड्स help us a lot while doing the programming. Okay children, so actually in next 2 or 3 classes children, we are going to learn, before going to the programming part with this data type, children, we have to learn about all the methods which are found with this data type. Okay, so first of all children, we should learn that how can we declare the variables using this data type, how to input the values for this, and after that we will move to its next part. Okay children, so as all of you know, first of all, that what do you mean by a string variable? Okay children, a string is known as a chain of characters. Okay, a string means chain of characters. Okay. Within double quotes. ठीक है children, these values are always kept within the double quotes, remember this. Okay, after that, now see that how we used to declare the variables using this data type. So children, whenever you want to declare a variable, so then we say a string st. You can declare a variable like this, or you can say a string st equal to new string. Okay children, in this way we can declare these data type. Or children, if you want to initialize the values also, then now look at the next examples. A string st equal to hello. Okay children, in this way we can also initialize the value. So now children, see that when you say a string st equal to hello, so now children look at the value. The value hello is having 5 characters and they must be kept within the double quotes. Okay, but before moving to the next point children, I want to tell you that how this value is stored into the memory. Okay children, when you initialize the value in a variable st of string data type children, the thing I want to tell you that this value is held in the memory in form of a character array. For example, if I'm going to store the value here hello, then see that how the memory will look like.
st. Okay, children. So now see that when you store the value hello into a string variable st, children, it will be represented in the memory in form of a character array. Means children, you see that all these five characters means h, e, L, L and O. They will be stored in an array of character data type, and it will be having five indexes starting from 0 to 4. Okay, and any individual character can be accessed easily. And how you are going to access these individual character, children, we are going to learn it very soon. Okay, but children, now see that what the query is asked in the examination. Okay. Many times children it have been asked that what is the difference between this. Suppose it is given A and A. Okay children. Now see what is asked that what is the difference between A and A. The first thing we find here that the first A is within the single quote and the second A is within the double quote. ओके ना, तो क्या चीज़ समझ में आती है हमको. सपोज दैट इफ वी हैव टू गिव द 2 points अबाउट देम. ओके, सो चिल्ड्रन, all of we know now कि that first A is within the single quote, it means it is a character value, है ना. ये कैसी वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है. और जो सेकंड वाला ए है ये कैसा है आपका, डबल कोट्स के अंदर है, एंड इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू. ठीक है. सेकंड थिंग चिल्ड्रन, सो सपोज आपका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. आफ्टर दैट वी मूव टू द सेकंड पॉइंट. इफ यू वांट टू store the first a into a variable, so you know that we have to make use of char data type. ओके ना, हम क्या करेंगे, char data type का यूज़ करेंगे. ठीक है. बट अगर आपको सेकंड वाला a किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, देन यू नो दैट वी विल मेक यूज़ ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप कि आपको अभी इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी. ओके, अब हम लोग बेटा ये देखते हैं कि दैट हाउ टू टेक द इनपुट ऑफ दिस टाइप ऑफ वैल्यूज यूजिंग द स्कैनर क्लास. ओके, सो फॉर दैट पर्पज चिल्ड्रन, नाउ सी सपोज आपने कोई एक यहाँ पे वेरिएबल लिया स्ट्रिंग n, और मुझे क्या करना है, यूज़र से आपके नेम की एंट्री लेनी है. तो मैं क्या बोलूँगा, SOP इनपुट नेम. ठीक है. तो अब आप नेम की एंट्री कैसे लोगे, n.s. नेक्स्ट लाइन. ठीक है ना. आप जो एंट्री लेते हैं वो कैसे लेते हैं, सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का. स्कैनर एस इक्वल टू ठीक है. तो ये आपने सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर क्लास का. तो अब आप क्या करने वाले हो बेटा, इसकी जो एंट्री लोगे कैसे लोगे, s.नेक्स्ट लाइन. एक और भी मेथड है, we can also say n equal to s.next. Okay children, so we are having two methods. Either we can make use of next line method or we can also make use of next method. तो आगे बढ़ने के पहले बेटा, क्योंकि ये क्वेरी भी बोर्ड में पूछी जा चुकी है, ठीक है, कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लाइन मेथड. तो अब आपके सामने दो मेथड आ गए हैं. ठीक है, एक आ गया है नेक्स्ट, ठीक है, और एक कौन सा आ गया है, नेक्स्ट लाइन. ठीक है. तो बेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट है इट कैन टेक द इनपुट ऑफ अ सिंगल वर्ड ओनली. ध्यान रखिएगा, वी कैन ओनली इनपुट अ सिंगल वर्ड. ठीक है. और जो
नेक्स्ट लाइन मेथड है, इट कैन टेक द इनपुट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स। ठीक है, बस यही बेटा एक दोनों में मेन जो है डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे देखिए ऊपर वाला जो सेगमेंट था, मैंने यहाँ पे क्या कहा था आपसे, इनपुट नेम। तो सब पहले वाले में आपने क्या इनपुट किया, n इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट लाइन, और सपोज हमने क्या इनपुट कर दिया, यहाँ पे हमने ये इनपुट कर दिया, रवि सिंह। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यू आराम से आपकी जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, एन में जाके स्टोर हो जाएगी। और अब आप अगर एन को अगर प्रिंट करवाओगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, रवि सिंह प्रिंट कर देगा। बट अगर आपने अगली लाइन अब देखिए क्या है, एन इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट, आपकी बार आपने फिर से ये इनपुट कर दिया, रवि सिंह। अब क्या होगा, अब आपको पता है ना कि अब की बार आपने कौन सा मेथड यूज किया है, नेक्स्ट। तो और ये जो मेथड है नेक्स्ट, इट टेक्स द इनपुट ऑफ अ सिंगल वर्ड ओनली। तो बेटा ये क्या करने वाला है कि व्हेन दिस वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू द एन, इट विल ओनली except the first word, that is Ravi, and Singh will be dropped. Okay, it will be not stored into the memory. तो अब की बार जब आप n को प्रिंट करोगे तो ये खाली क्या प्रिंट करेगा, आपके लिए रवि प्रिंट करेगा। तो इसलिए बेटा बहुत सोच समझ के यूज करना है। और हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो फर्स्ट मेथड है दैट इज नेक्स्ट लाइन, वही अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो कैपेबल है टू स्टोर द सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है सेकंड वाला बहुत रेयरली यूज करेंगे। ठीक है क्लास, तो बेटा मैं आई होप कि इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, कि कौन की हम लोग जो है ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये क्या होती हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि क्यों इसको जावा में एज ए डेटा टाइप, एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है ना, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट इन जावा इन फॉर्म ऑफ ए लाइब्रेरी क्लास। क्यों, क्योंकि it can have many methods with it. Okay, many library methods are there with this string data type. Okay, which can be very helpful, they will be very useful for us while writing the programs. Okay, and as I told you that before moving to the programming part children, okay, we have to learn all these methods one by one. Okay, so now I take you to the methods which are with this data type, and we have to learn few methods today itself. Okay, okay children, so now it is our first sheet of the string handling methods. Okay, and you can see that the first method which is given here is length. Okay, and see that what is told about this, that this method returns the length of the given string. Okay, and after that one example is also given, and the syntax is also given. And first children see that what is its syntax, that it is the method length, and in the syntax children it is told int, the name of children, before the name of this method one thing is specified, int. What it means ki that this method after calculating the result returns the answer in integer form. ओके, और ये बेटा क्या करता है मेथड, ये आप जो भी इसको एक वर्ड या कोई सेंटेंस या कोई स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, ये उसमें जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये कैलकुलेट करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द एग्जांपल गिवन हियर। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज शोन दैट string str equal to, and after that one sentence is stored here, java is fun and full stop. Okay children, so now see that what should be the output of this example. So you know children ki we have to count the number of characters, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So children we can see 9 alphabets in this. Okay na, after that children you have to also count the number of blank spaces. Children, these are also characters but they are not visible. Okay na, so they are known as invisible character, but children they also occupy the memory. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास
जो 9 तो क्या हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, इसके अलावा जो 2 ब्लैंक स्पेस हैं वो भी काउंट करिए, तो 11 और फिर एक 12th पे आपको क्या मिल रहा है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यानी आपकी जो यहाँ पे जो इसकी जो लेंथ है वो किया है 12 कैरेक्टर्स। पर इसे कैलकुलेट कैसे करना है आपको, ये देखिए अगली लाइन मैंने क्या बोला, आई एन टी लेन इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ, यानी कि ये जो वेरिएबल था बेटा एस टी आर, इसके आगे आप डॉट लगाएंगे और इसके ऊपर लेंथ वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जावा इच फन, इस पूरे सेंटेंस की लेंथ यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके इंटीजर फॉर्म में इसका जो आंसर आया है कर देगा रिटर्न, और वो आंसर कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, इंटीजर लेन इक्वल टू यानी लेन नाम के वेरिएबल में। अब आप जब यहाँ पे लेन को जब प्रिंट करवाओगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। ठीक है ना, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर ध्यान दीजिएगा, अगला जो मेरा मेथड है दैट इज कैर एट। ठीक है, कैर एट बेटा ये भी बहुत ही आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये क्या करता है जरा देखिए, दिस मेथड returns the character at given index number. Okay, this method returns the character, okay, at given index number from a स्ट्रिंग, यानी कि ये जो मेथड है जब भी आप इसको कॉल करोगे तो आप जो भी इंडेक्स नंबर बताओगे वो उस इंडेक्स नंबर से एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके हमको रिटर्न कर देता है। तो अब जरा देखिए ये वाला जो फंक्शन लिखा है कैरेट, कैरेट के पहले यहाँ पे जो डेटा टाइप मेंशन किया गया है वो क्या मेंशन किया गया है, कैर। व्हाट इट मीन्स कि दैट वेन एवर यू विल इन्वोक दिस मेथड इट विल रिटर्न अ कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू। सो वी जस्ट लुक एट द एग्जाम्पल। Okay, now look at the example what is told, string str equal to java h1. Okay children, so you know that what will happen. Children, you know that this sentence will be stored into the memory. Okay, java h1. ठीक है, कैसे स्टोर हो जाएगी, जे ए वी ए जावा एच एंड देन फन। ठीक है ना, तो जावा इज फन ये ऐसे आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा मेमोरी में, और ये हर एक जो है यहाँ पे कैरेक्टर को एक इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि इस पूरे जो सेंटेंस की जो लेंथ है वो कितनी है, 11 है। तो यानी कि जब ये एरे में जब स्टोर होगा तो ये जो है 0 से लेके 10 तक के इंडेक्स नंबर में एक कैरेक्टर एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा मेरे पहली लाइन हो गई। फिर मैंने यहाँ पे क्या बोला, कैर सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 5। तो आपको बेटा पता है ना कि ये जो मेथड है कैरेट 5 ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 5 पे जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे क्या स्टोर है इंडेक्स नंबर 5 में, स्मॉल आई, इज का आई स्टोर है। तो ये इसको फेच करके सी एच में स्टोर कर देगा। तो अब आप जब यहाँ सी एच को जब प्रिंट करोगे तो ये क्या प्रिंट करने वाला है, स्मॉल आई प्रिंट करने वाला है। ठीक है, ऐसी मैंने अगली लाइन देखी क्या लिखी, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस टी आर डॉट कैरेट 0। तो बेटा अब आप जब 0 पे जाओगे तो यहाँ देखिए 0 पे कौन सा स्टोर है कैरेक्टर, कैपिटल जे स्टोर है। ठीक है ना, जावा का कैपिटल जे स्टोर है, तो यानी कि ये क्या प्रिंट करने वाला है, कैपिटल जे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप कोई भी यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो भी स्पेसिफाई करोगे, द मेथड विल फेच दैट कैरेक्टर एंड प्रिंट और स्टोर इट इनटू अनदर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि एस टी आर डॉट कैरेट 10, तो 10 पे क्या निकल के आ जाएगा, आपको पता है ना, फन का n निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बेटा अपना इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करके अपने स्ट्रिंग में से कोई भी कैरेक्टर फेच कर सकते हैं इजीली। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लास्ट वन। ओके ना, द लास्ट वन when we say that system dot out dot println str dot caret 15. So children, you know that we are trying to fetch a character from the index number which does not exist within the array. We know that all the values are stored from the index number 0 to 10, but in the statement children we are trying to extract the character from the index number 15.
Okay na? And all of you know it very well from the previous topics like arrays and double dimension arrays, that whenever we try to access an element from the index which does not exist within the array, then your answer will be printed as array index out of bound. It means children the statement will produce a runtime error, है ना? तो यहाँ पे क्या लिख किया जाएगा बेटा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि आप अपने एरे की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख के आ जाता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो आपको इतना केवल याद रखना है, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रन जो नेक्स्ट मेथड है आपका वो क्या है, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो आज का ये हम लोग लास्ट यहाँ पे जो मेथड है वो देखने जा रहे हैं, दैट इज इंडेक्स ऑफ। चिल्ड्रन सी दैट व्हाट इट सेज, दैट दिस मेथड returns the index number of a character. Okay, this method returns the the index number of a character at its first occurrence within a given string. Okay children, यानी कि ये जो मेथड है जब भी आप इसको कॉल करते हैं तो ये कोई भी कैरेक्टर किस इंडेक्स नंबर पर एग्जिस्ट करता है ये हमको बताता है, ठीक है कि नहीं। तो बेटा अभी अभी हमने कौन सा मेथड देखा था, कैरेट, ठीक है, और ये इसका जस्ट अपोजिट है। कैरेट में क्या होता है, आप इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करते हो एंड इट रिटर्न्स द कैरेक्टर। अब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि हम एक कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे एंड द मेथड विल रिटर्न द इंडेक्स नंबर, कि वो कैरेक्टर किस इंडेक्स नंबर पर है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, क्योंकि बेटा इसके यहाँ पे दो सिंटैक्स हैं, ठीक है, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये कि इसके दो सिंटैक्स होते हैं, ठीक है। पहला जो सिंटैक्स है वो क्या है, INT इंडेक्स ऑफ कैर, यानी कि पहले टाइप में जब आप इसको यूज करते हो तो आप बस इसको खाली क्या बताते हो, कैरेक्टर बता देते हो। इंडेक्स ऑफ जो जब भी फंक्शन कॉल करोगे तो आप एक कैरेक्टर स्पेसिफाई कर दोगे एंड चिल्ड्रन द मेथड विल सर्च फॉर दैट कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग एंड, और जहाँ पे भी फर्स्ट ऑकरेंस यानी जहाँ पे भी ये पहली बार अपीयर होगा उस कैरेक्टर का इंडेक्स उसी पोजीशन से ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जो सेकंड सिंटैक्स है इंडेक्स ऑफ, इसमें क्या होता है बेटा, हम लोग एक तो पहले कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे जो हम लोग सर्च करने जा रहे हैं जिसका इंडेक्स नंबर पता लगाना है, एंड कॉमा इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स। सेकेंड थिंग कि हम ये बताते हैं कि हमें किस इंडेक्स से सर्च स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं बताते हो, पहला वाला सिंटेक्स यूज करोगे, तब तो ये कहाँ से सर्च करता है, हमेशा जीरो से। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे जावा इज फन में बेटा मुझको अगर ए सर्च करना है तो आपको पता है ये जीरो से सर्च करेगा और पहला ए कहाँ पर है, वन पर है, तो ये मुझे आंसर वन दे देगा, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आप यहाँ पे सेकंड वाला सिंटेक्स यूज़ करो और बताओ ए कॉमा इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पे जो स्टार्ट इंडेक्स है वो आप टू टू बता दो, टू, तो अब ये टू से क्या करेगा, अब ये टू के आगे सर्च करेगा, तो टू के आगे जब ये ए सर्च करेगा तो ये कहाँ पे मिलेगा, थ्री पे मिलेगा। तो यानी पहला जो एग्जाम्पल है वहाँ पे तो मुझे आंसर वन मिलेगा, पर सेकंड एग्जाम्पल से मुझे आंसर थ्री मिलेगा, ठीक है। ये सब कैसे होगा ये इसको ज़रा करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल। नाउ सी स्ट्रिंग str इक्वल टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर की गई है, तो पहले हम लोग इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कर लेते हैं, ठीक है, आइए। ओके चिल्ड्रन, तो इसकी बेटा जो टोटल लेंथ आई है इस स्ट्रिंग की कंप्यूटर एप्लीकेशन की वो आई है मेरे पास 20। इट मीन्स कि इसके जो कैरेक्टर्स हैं चिल्ड्रन दे आर स्टोर्ड फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 0 टू इंडेक्स नंबर 19, ठीक है। अब आइए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन STR डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल बी।
यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में बताइए कैपिटल पी कहाँ पर है। तो अब आप जरा बिगनिंग से देखो तो आपको कहाँ पे ये मिलता है, आपको इंडेक्स नंबर 3 पे। और मैंने आपसे क्या बोला कि आगे देखिए और भी पी हैं, पी आपके पास 10 पे भी है, पी आपके पास 11 पे भी है, ठीक है। यानी कि 3 पीज आर देयर एट इंडेक्स नंबर 3, 10 एंड 11। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये जो इंडेक्स ऑफ मेथड है इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द कैरेक्टर, यानी जहाँ पे पहली बार अपीयर होता है। तो ये 0 से सर्च करेगा और पहला पी इसको 3 पे मिलेगा, तो योर आंसर विल बी प्रिंटेड एज 3। ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगला देखिए मैंने क्या बोला, str.index ऑफ कैपिटल टी, कि देखिए कैपिटल टी का इंडेक्स बताइए। तो अब आप देखो कैपिटल टी भी कहाँ कहाँ पर है, 5 पर है और कहाँ पर है, 16 पर है। तो ये आपको क्या आंसर देगा बेटा, 5 देगा। क्यों 5 देगा, क्योंकि पहला जो टी है वो मेरा 5 पर है, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ कैपिटल बी। बेटा देखिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। कैपिटल बी कब कह रहे हैं कि बताइए क्या इंडेक्स होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो जब आप पूरे स्ट्रिंग को जब देखते हो ध्यान से, तो व्हाट डू वी फाइंड कि दैट कैपिटल बी डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द वैल्यू एनीवेयर, ओके ना, फ्रॉम इंडेक्स नंबर 0 to 19। सो देन व्हाट द method will return or what it is going to print, so children the answer will be -1। तो ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है, ठीक है। क्या चीज़, कि कभी भी किसी अगर ऐसे करेक्टर का इंडेक्स आपसे पूछ लें जो पूरे स्ट्रिंग में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये मेथड हमेशा -1 देता है, ठीक है। और ये देखिए हम यहाँ पे एक नोट भी दे दिया गया है शीट में कि इफ़ कैरेक्टर इज़ नॉट फाउंड देन द मेथड रिटर्न्स -1। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाला जो सिंटैक्स है, इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो देखिए जो सेकंड वाला सिंटैक्स है वहाँ पे क्या चीज़ बोली गई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन str.index ऑफ कैपिटल पी कॉमा 4। यानी कि बेटा जो कैपिटल पी का अब बताइए इंडेक्स और कॉमा 4, ये क्या चीज़ है कॉमा 4, ये बेटा हमने बता दिया है अपना स्टार्ट इंडेक्स। यानी कि किस इंडेक्स से अब आप सर्च करोगे, यानी कि वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर द कैपिटल पी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 4। तो यानी बेटा 4 पे क्या है जरा देख लीजिए, यू है। इसके आगे अब आप जो है पी सर्च करना शुरू करिए। तो 4 के आगे जब आप सर्च करोगे तो पहला पी आपको कहाँ पे मिलेगा बेटा, 10 पे मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए लास्ट एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, str.index ऑफ कैपिटल पी कॉमा 6। यानी कि इंडेक्स नंबर 6 के ऑनवर्ड देखिएगा, तो ये देखिए 6 पे क्या है, ई है, तो 6 के ऑनवर्ड देखिए कैपिटल टी कहाँ पे है, ठीक है। तो इसके आगे जब आप चाहोगे तो टी आपको कहाँ पे मिल रहा है बेटा, ये 16 पे मिल रहा है। तो यानी मेरा इस स्टेटमेंट का जो आंसर होगा दैट विल बी 16, ठीक है। तो ये बेटा हमने आज के यहाँ के जो 3 मेथड्स हैं ये भी किए। तो आज हम लोगों ने 2 चीज़ें सीखी, क्या क्या, कि व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, हाउ कैन वी टेक द इनपुट ऑफ देम, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल, ओके, एंड वी ऑल्सो लर्न फ्यू स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड्स, ओके चिल्ड्रन। और अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उनमें हम लोग बाकी और मेथड्स हैं चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 15 मेथड्स इन दिस, ओके, एंड टुडे वी लर्न ओनली 3, okay. So from next classes children we will only learn the string handling methods before going to the programming section, okay. चलिए, thank you.